The tragedy and the stampede has resulted in loss of at least 9 lives so far. The tragic scene from Andhra today, a religious gathering turned into a nightmare at the Sri Venkateshwara Swami temple in Srikakulam, where a massive stampede claimed at least 9 lives, including women and children, and left several others injured. On the auspicious occasion of Ekadashi morning, what was meant to be a moment of devotion became a moment of panic as crowds surged and chaos broke out inside the temple complex. Emergency teams and police reached the spot quickly. The injured have now been taken to nearby hospitals, and the officials fear that the death toll may go up. Visuals from the temple premises show a chaotic scene with devotees lying on the ground as others try to help. And according to the Chief Minister's office, additional police forces have now been deployed to manage the situation and support rescue efforts. Prime Minister Modi has expressed grief, offered condolences. He's announced at least 2 lakh rupees compensation for each of the next of kin of those who died and 50,000 rupees for those who are injured. Chief Minister N. Chandrababu Naidu has also called the tragedy extremely heartbreaking. He has directed officials to ensure proper medical care and has asked local authorities and public representatives to visit the site and monitor relief efforts. And notably, the Sri Venkateshwara Swami temple is a private shrine. It's not under the endowments department. It was inaugurated only 4 months ago. The gathering reportedly took place without prior government approval. The area where the devotees had assembled was still under construction, with only one entry and exit route. Panic broke out when the steel railings collapsed, triggering the stampede. आज श्री कैकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में जो भगदड़ हुई और उसमें जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, वो बहुत ही दुखद घटना है। एकादशी के पुण्य तिथि पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण, भगदड़ मचने के कारण ये दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ। इस बारे में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह एक प्राइवेट मंदिर था और ना ये एंडोमेंट डेवलपमेंट के अंडर में था। मंदिर की तरफ से कोई भी सरकार को सूचना नहीं दी गई थी और ना किसी प्रकार की पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहां अत्यधिक भीड़ इकट्ठी होगी। मंदिर की तरफ से जहां भी ये अत्यधिक भीड़ इकट्ठी हुई है, वो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। श्री नारा लोकेश अभी तुरंत जानकारी के हिसाब से मालूम हुआ है कि वो मंदिर की तरफ प्रस्थान कर गए हैं, जिससे जो भी घायल हैं उनकी अधिक से अधिक सहायता की जा सके और उनका सही उपचार किया जा सके। आई एम डीपली saddened and shocked by the tragic incident at the Sri Venkateshwara Swami temple, Kashi Bugga in Andhra Pradesh, Srikakulam district, where more than 9 innocent devotees lost their lives in a tragic stampede. Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh extend our deep condolences to the family, and also our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has extended his deep condolences to the family and also announced 2 lakh rupees to each deceased family and 50,000 to the injured. We pray for their soul to reach Vaikuntha, and may injured people recover in a fast manner. We also acknowledge that the government is taking all necessary medical arrangements, and also they are doing their best. And at the same time, Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh, we urge the state government to conduct immediate transparent inquiry and make sure that the responsible will be arrested, and let the government take its own actions on the responsible people.
25,000 के ऊपर लोग आए एकादशी के वास्ते, उसमें दुर्घटना हुआ। अब तक 12 लोग उनका जो भाग दौड़ में और ऊपर सीढ़ियों में चढ़ने से नीचे से गिरना, ये बड़ा दुर्घटना हुआ। इसके वास्ते आंध्र का सरकार सबको मरे वालों को एक्सग्रेशिया देना और वो मंदिर को परमानेंट ऐसा सोल्यूशन, कोई भगवान के पास वेंकटेश्वर स्वामी का आने वाले दिनों में कोई इंसिडेंट नहीं होना। दुर्घटना में जो मरे वालों को मेरा कंडोलेंस, और जो लोग मर गए उनको वो मारा लगे, उनको बराबर का सरकार उनको भी एक्सग्रेशिया देना। And meanwhile, former Andhra Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy, condemning the tragic incident, pointed out past stampedes at Tirupati and Simhachalam, accusing Naidu government of repeated negligence and failing to take precautionary actions despite earlier tragedies as well. This is the 5th major stampede this year where devotees lost their lives. On 9th of January in Tirupati in Andhra Pradesh, 6 devotees died in a crush while rushing for festival tickets. On 3rd of May this year at Sri Lairai Devi temple in Goa, 7 people were killed in an early morning stampede on a narrow slope. And during the Jagannath Puri Rath Yatra in Puri in Odisha on 29th of June, 3 people lost their lives in a morning crowd surge. On 27th of July at the Mansa Devi temple in Haridwar, 6 people died, many were injured. And just today at the Kasibugga Venkateshwara Swami temple, 9 people perished in a massive rush. And so what's leading to the stampede-like situation, the repeated stampede-like situation, and what really transpired in Andhra? To talk about that, joining me on the show is Noor Mohammed, my colleague. Noor, क्या कुछ समझ में आया है हमें कि क्या हुआ उस टेम्पल में जब इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, किस वजह से स्टैम्पीड हुई? देखिए, अब फिलहाल तो मंदिर के पास जो सिचुएशन है, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे या जितने भी जख्मी लोग थे और जो लोग डेथ हुए थे, इन तमाम को यहाँ से हटा लिया गया है और आसपास के दवाखानों में शिफ्ट करके इनका पूरी तरह ट्रीटमेंट सरकार कर रही है। और सरकार पूरी तरह फोकस करते रखी है कि यहाँ पे किन राज्यों से यहाँ पर लोग आए थे और कौन कौन यहाँ पे जख्मी हुए थे, क्या सिचुएशन है। देखिए, ये मंदिर जो है एक प्राइवेट मंदिर है। आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि अगर पहले से इस मंदिर के बारे में यहाँ की जो भीड़ जमा हुई, इकट्ठा हुई है, अगर इसकी बात मंदिर कमेटी की तरफ से सरकार या लोकल पुलिस या लोकल कलेक्टर को भी अगर इसी इंफॉर्मेशन अगर शायद देते तो हम लोग पूरी तरह तैयारी करके रखते थे। मगर मंदिर कमेटी ने ये भी नहीं सोचा कि हाल में मंदिर बनी है। देखिए, ये मंदिर तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की शक्ल में बनाई गई थी, जिसको बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और आसपास के कई राज्यों से यहाँ पर आना जाना लोगों का लगा हुआ है। ये अचानक जब लाइन में क्यू में खड़े हुए थे महिलाएं, 2 महिलाओं के बीच में कुछ नोकझोंक होती है, जो छोटी सी बात पर बहस होती है, वो बहुत बड़ी भी नहीं हुई। अचानक वहां से जो गैलरी बनाई गई थी, जो लोहे की जो जाली रखी गई थी, वो टूट जाती है। वो उसके गिर जाने के बाद जो भागदौड़ मचती है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है। फिल वक्त जो जख्मी है उनको आसपास के दवाखानों में भर्ती कर दिया गया है। देखिए, एक बात यहाँ पर साफ है, अगर मंदिर कमेटी के लोग अगर किसी भी तरह से वो प्रशासन को बताते नहीं, उनकी मदद नहीं ली जाती, तो इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी है उनका काम था कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जांच पड़ताल करते वो लोकल एसपी या कलेक्टर तक बात पहुंचाते तो शायद ये इतना बड़ा घटना नहीं होती थी। इस हादसे के बाद पूरी तरह आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने पूरी तरह फोकस किया है। जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बीजेपी हो या जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, खुद रूलिंग गवर्नमेंट के जो लीडर्स है, वो तमाम के तमाम स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, हर तरह से वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो घटना हुई है इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मगर ये पूरी जो मंदिर थी, एक प्राइवेट मंदिर थी, एक आदमी ने इसको बनवाया था और वो बहुत दान क्रम करने वाला आदमी है। उसने बता रहा है कि ये जो मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएंगी। देखिए, इस मंदिर का जो प्रचार हुआ था कोई मीडिया के जरिए, ऐसा नहीं हुआ था। ये लोग खुद गांव जो देहाती इलाकों में जाकर इसका प्रचार किए थे, जिसको लेकर इस मंदिर की पूरी कैपेसिटी जो बताई जा रही है 3 से 5 हजार है और 20,000 के आसपास जो लोग आ गए थे। इसकी वजह से भागदौड़ में बहुत ज्यादा जख्मी और डेथ की संख्या बढ़ी है। फिलहाल तो सरकार पूरी तरह
नजर बनाए रखी हुई है और जहां तक हो सके डेथ की संख्या कम हो, इसके ट्रीटमेंट भी बहुत तेजी के साथ दवाखानों में शिफ्ट करने के बाद सरकार जारी रखी है। ऑल राइट नूर, इनफैक्ट हमें ये भी पता चला है कि लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या आप कंफर्म कर पाएंगे कि कितने लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं? देखिए, अभी सरकार जस्ट अभी कंफर्म की है कि जो संख्या है वो 10 तक पहुंची है, मगर जो अभी जो जख्मी जो उनकी हालत है वो ज्यादा जो क्रिटिकल हालत है उनको पूरी तरह ट्रीटमेंट के बाद ही उनको संभाल लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट भी आया है। मगर जो लोगों की डेथ हुई है वो किन राज्यों से है, फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। मगर जो हादसा हुआ इस पूरे हादसे पर लोकल कलेक्टर एक कमेटी डाले हैं कि कहाँ पे लापरवाही हुई है, किन अधिकारियों की वजह से, कि क्यों अधिकारी यहाँ पे फोकस नहीं कर पाए। पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि कहाँ पे चूक गलती हुई है और किन किन राज्यों से यहाँ के कितने लोग आए थे। बिल्कुल नूर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमें सुनने में आ रहा है कि प्रायर परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन एक रेलिंग गिरने की वजह से पैनिक जैसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से लोग भागने लगे, क्योंकि एग्जिट और एंट्री सिर्फ एक ही थी, इसीलिए शायद वहां स्टैम्पीड सिचुएशन बनी। ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्यू जो लगी हुई थी, जो कतारों में जो लोग लगे हुए थे, एग्जिट और एंट्री एक ही तरह से दोनों तरफ से जाली बांधी गई थी। और उस जाली के टूटने के बाद एक तरफ देखिए पूरी तरह वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया था, और जिसकी कैपेसिटी है 3 से 5 हजार तक की बताई जा रही है। देखिए 20,000 के अगर आसपास अगर लोग आते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ का सिचुएशन क्या हो सकता है। जाली के टूटने के बाद, ग्रिल के टूटने के बाद जो भागम दौड़ी मची है, देखिए बहुत सारे लोगों का पूजा का सामान, नारियल, बहुत सारे, आप इस विजुअल्स के अंदर दर्शकों को बता सकते हैं कि जिस तरह का मंजर वहाँ पे जो हमने देखा है वो बहुत बड़ा दर्दनाक है। कहीं ना कहीं मंदिर कमेटी और मंदिर जो प्रशासन है उनको भी नजर रखनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी पहली बात है, मंदिर कमेटी अगर वो शायद लोकल पुलिस को या इंतजामिया को बताती तो शायद वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत इजी था। मगर कहीं ना कहीं मंदिर वालों की तरफ से भी एक छोटी बहुत भूल हुई है। दूसरी तरफ जो स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस जो अधिकारी होते हैं, जो हर गली हर नुक्कड़ पे उनकी छानबीन की नजर होती है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही थोड़ी बहुत तो नहीं नूर, काफी लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि उन्होंने टाइमली परमिशंस नहीं ली। एक तरीके से जब उन्हें, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था क्राउड इतना बढ़ जाएगा, बट टाइमली परमिशंस वर नॉट टेकन। Noor, thank you very much for all those details. A big lapse there as far as security measures is concerned. We're given to understand, Noor confirming that at least 10 people have died as a result of that tragedy, that stampede that occurred this afternoon. The Prime Minister has condoled the deaths, a lot of compensation to the tune of about 2 lakh rupees ex gratia for each of those who died has now been announced, 50,000 rupees for those who are currently being treated in the hospital. But moving on now, on a day that was meant to celebrate unity, India's political landscape appeared more divided than ever. A furious war of words erupted between the Congress and the BJP after Congress President Mallikarjun Kharge renewed his calls for a ban on Rashtriya Swayamsevak Sangh, invoking Sardar Vallabhbhai Patel's 1948 letter that had imposed similar restrictions following Mahatma Gandhi's assassination. Kharge said that RSS should not be allowed to involve government employees in its activities, claiming that Modi government lifted that decades-old restriction last year, demanding its reinstatement. जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई, तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। The BJP hit back sharply, accusing the Congress of hypocrisy, distortion and selective use of history. Party spokesperson Sudhanshu Trivedi, Sambit Patra and Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma lashed out, saying that the Congress had ignored Patel's legacy for decades, even as Prime Minister Modi built the Statue of Unity in his honour.
All right, let's now cut across to Prime Minister Modi. He is speaking on the occasion of Chhattisgarh Foundation Day. ये संकल्प भी लिया था कि छत्तीसगढ़ विकास की नई बुलंदी छुएगा। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आपसे भी भाई बहनों ने मिलकर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। छत्तीसगढ़ आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ को लोकतंत्र का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, साल 2000 के बाद यहां पूरी एक पीढ़ी बदल चुकी है। आज यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे, अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड है। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया
जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो, और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था, एक। आज छत्तीसगढ़ में 14 मेडिकल कॉलेज है। हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। साथियों, हमारा प्रयास है कि गरीब को सम्मान का जीवन मिले। झुग्गियों की, कच्चे घरों की जिंदगी गरीब को और निराश करती है, हताश करती है। गरीबी से लड़ने का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने And that's Prime Minister Modi in Chhattisgarh at the occasion of 25th Foundation Day of the state. But moving on now, the Bangladesh Criminal Investigations Department has declared ousted Prime Minister Sheikh Hasina and the 260 others are fugitive in a major sedition case linked to the platform Joy Bangla Brigade. The CID alleges that group conspired to overthrow the government through online activities. A charge sheet has now been filed against 286 individuals, including Sheikh Hasina. Meanwhile, the International Crimes Tribunal has concluded its trial against Hasina on the charges of crimes against humanity, with the verdict scheduled for 13th of November. The case follows political unrest in 2024 that forced Hasina to flee, leading to Nobel laureate Muhammad Yunus heading the interim government. And it's the end of an era in Indian tennis. Rohan Bopanna, the powerhouse of Indian doubles, the man with booming serve, has announced his retirement after a spectacular 2-decade-long run. From Grand Slam glory to Davis Cup heroics, Bopanna carried the tricolour to courts across the world, winning hearts and matches alike. In a moving post titled "A Goodbye But Not the End," the 45-year-old said it's time to hang up his racket but not his passion. His final battle came at the Paris Masters this week. A true giant bows out, leaving behind not just trophies but a legacy that will echo through Indian tennis for years to come. And it's the end of an era as far as Rohan Bopanna is concerned. The powerhouse of Indian doubles is retiring. He's announced his retirement.
in a post on social media titled "A Goodbye But Not the End." He says he's hanging up his racket but not his passion. I remember his final battle came at the Paris Masters this week. And a true giant that he is, he bows out, leaving behind not just trophies but a legacy that will continue long after he is gone.